गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जे इस तरह मैं अर्ज करा कि जो पूरब दी धरती है और पूरब दा आकाश, इहदे विच अनगिनत सितारे भरे पे हैं और बहुत कीमती सितारे, सिरमौर सितारे। सितारियां तो मुराद है एक तो एक भगत संत पुरुष नामी पुरुष। तो जितने भगत पूरब दी धरती ते होए, मेरे ख्याल दे विच उतने पश्चिम विच नहीं होए। और एक मनोविग्यानी की कहता है, कहता जे पूरब दे भगत पश्चिम विच होंदे ते पश्चिम दी समझ विच ये भगत नहीं आने सी, जो कि परमात्मा दे नाम ते ही रो पैंदे ने, परमात्मा दे नाम ते ही नेत्र सजल हो जाते ने। तो पश्चिम इस गल की सोची नहीं, पश्चिम ने की करना सी, सारे भगतां खाने विच बंद कर दे, करदियां परमात्मा नूं छड्ड बैठे। और ये हकीकत है कि जदों चेतना पदार्थां की खोज करती है तो फिर चेतना बाहर ही भटकती है, क्योंकि पदार्थ बाहर हन, परमात्मा अंदर है। और पूरब ने जो परमात्मा की खोज की, अंदर की खोज की, अंतर्मुखी होए, तो फिर बाहर की जिहड़ी खोज सी वो कमज़ोर पै गई। तो जितनी टेक्नोलॉजी पश्चिम विच है, पूरब विच नहीं। और जितना अध्यात्मक तल पूरब दा है, वो पश्चिम दा नहीं है। पर एक आलम कहता है, दोवें ही गलती कर बैठे, क्योंकि पूरब दे विच भगत भरे पे हैं। हुण पूरब नूं जे पदार्थ चाहिए होण ते फिर वो पश्चिम कोलों मंगदा है, जिहड़े पश्चिम दे देश हैं, पश्चिम दे मुल्क हैं। और पश्चिम दे जो देश हैं वो आत्मिक शांति वास्ते पूरब वल आंदे ने। हिमालय की गोद विच बैठ के नाम जपीए, इबादत करिए। और एक मैं गल होर कह दवां, पूरब दे लोग भगती कर कर के वो थक गए, फिर इन्होंने पश्चिम दे लोगों की सभ्यता अपनानी शुरू कर दी है। ते पश्चिम दे लोग की कहते हैं कि अपनी सभ्यता तो असी हुण थक गए हाँ, हुण कपड़े भी पाने तां जिस तरह के पूरब दे लोग पाते ने, भोजन भी वो छकना जो पूरब दे लोग छकते। और इसे करके साडे बच्चियां दा रुझान पश्चिम की सभ्यता वल है और पश्चिम के लोगों का रुझान पूरब की सभ्यता वल है। कहते ने एक गल चेते रखना, धर्म की साधना करदियां करदियां किधरे धन नूं ना विसार बैठना। धन भी चाहिए है, क्योंकि धर्म की किश्ती चल ही नहीं सकती जे धन का पानी ना होवे। तो मैं फिर गल दोहरा देवां, धर्म किश्ती है, चलाओगे कित्थे?
ਤੇ ਧਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਧਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਧਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਾਫ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਚੇਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਪਲੰਗ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੋ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਾਲੇ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਨਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੀਲ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਬੁਕੇ ਸਨ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਸਨ।
हैरानगी उदों हुई जदों उन्हां दे कोल पहुँचे हाँ, उन्होंने साढ़े ते फुल्लों की वर्खा की थी। हद हो गई। असी इन्हों जितना चाहते हाँ, मारना चाहते हाँ, अपनी ऐन मनाना चाहते हाँ, लेकिन ये तो फुल लेके खड़े हुए हैं। ये तो टाकरा करन वास्ते तैयार ही नहीं हुए। हुण की करिए। सिकंदर नूं बड़े अदब नाल सिंघासन ते बिठाया, सारी फौज नूं आराम दे नाल बड़े चंगे आसन ते बिठाया, फिर लंगर दा बंदोबस्त किया। जदों पिंड दा जो मुखिया सी, उसने थाल सजा के और सिकंदर दे सामने रख दिता और हाथ बन के कहन लगे, सिकंदर बादशाह जी, ये छको भोजन। तो जिवें ही सिकंदर ने उस थाल का रुमाल हटाया तो बड़ा क्रोधित होया ते ठोकर मार देती उस थाल। बुजुर्ग कहता है, सिकंदर जी बादशाह सलामत, थाल नूं ठोकर मारन दी लोड़ की सी? ठोकर क्यों मारी? तो सिकंदर की कहता है, मैं ठोकर इस करके मारी है कि थाल दे विच की सी, पहला ये दसो तुसी। मैं तो देखिया ही देखिया, तो दसो थाल विच की सी? बुजुर्ग कहता है, थाल विच सोने की रोटी सी ते हीरे जवाहरातां दी सब्जी सी। ध्यान दे नाल सुनना, सोने की रोटी सी, हीरे जवाहरातां दी सब्जी सी। तो सिकंदर कहता है उस बुजुर्ग नूं, बुजुर्गो इतनी उम्र हो गई, हाले तक अकल नहीं आई तुहानूं? कदे सोने की रोटी नाल भुख मिटदी है? कदे हीरियां दी सब्जी कोई खा सकता है? तो बुजुर्ग की कहता है, कहता है जे सोने की रोटी नाल भुख नहीं मिटदी, जां कौन खांदा है? जे अन्न की रोटी नाल भुख मिट सकती है तो फिर तेरे ही मुल्क विच अन्न दीयां रोटियां बहुत हैं, तैनूं भटकण की लोड़ की है? फिर क्यों भटकदा पिया इत्थे? जे अन्न की रोटी नाल भुख मिट सकती है तो तू क्यों भटकदा पिया इत्थे? फिर क्यों भटकदा? वो तो तेरे ही मुल्क विच बहुत है। सिकंदर कहता है, मैनूं चोट लगी, मैं अर्ज कर दिया सी कि साड़ी जो चेतना है वो पूरब वल भी जा सकती है, पश्चिम वल भी जा सकती है। साड़ी जो चेतना है वो देवी गुण भी इकट्ठे कर सकती है और असुर संपदा भी इकट्ठी कर सकती है। मैनू किसी ने सवाल किया, कहने लगे, ज्ञानी जी एक गल दसो, जितनी तेजी नाल मनमुख वधदे हन उतनी तेजी नाल गुरमुख क्यों नहीं वधदे? एक ये सवाल। ते दूजा सवाल कि गुरमुख तो किते दिसते ही नहीं, मनमुख ही दिसते हैं। जिस पासे भी वेख लीए कहते ने गुरमुख तो टामे टामे दिसते। और हो सकता है आप जी ने भी एक गल कबूल कर लेना। मैं उसनों एक सवाल किया, आप जी दसो बाणी पढ़ते हो? कहने लगे, ज्ञानी जी 5 पाठ जपजी साहिब दे मैं रोज़ करदा। 5 पाठ तो मुबारक है, पर जे किधरे 5 पाठ की थां ते 1 पाठ कर लेंदा, पर समझ समझ के कर लेंदा, तो तैनूं अज ये सवाल नहीं पूछना पैंदा जे एको ही पाठ कर लेंदा। तो वह कहता की मतलब? मैं क्या आप जी ने सवाल किया कि गुरमुख तो दिसते ही नहीं, मनमुख ही मनमुख हैं। पर गुरु नानक दे बोल की कहते ने, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दाता।
असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ। हद हो गई। असंख किसनों कहते हैं? जे असंख का एड़ा हटा दईए तो बनता है संख्या, गिनती, मिणती हो सकती है। जे एड़ा लगा दिता तो अपोजिट हो गया, जिहदी कोई गिनती मिणती नहीं। तो असंख भगत मौजूद हैं, असंख सती दातार मौजूद हैं, असंख भगत मौजूद ने। दूजे पासे गुरु साहिब कह रहे हैं कि जे असंख भगत हैं तो फिर संतुलन देखना, असंख मूर्ख अंधघोर। फिर असंख मूर्ख भी हैं, असंख चोर भी हैं। हुण मनुख की देखण की अपनी एक दृष्टि होनी चाहिए है। कहते ने मनुख नूं दूजे दे विच अपनी ही तस्वीर दिसती है, अपनी ही तस्वीर। इसनूं मैं इस तरह थोड़ा जिहा समझावां। एक बच्चा मेरे नाल सी, मैनूं कहण लगे ज्ञानी जी ये गड्डी बैठे जा रहे ने बच्चे, एक बच्ची है एक बच्चा है, तो उन्होंने होर दृष्टि नाल गल कीती ते मैं उसनूं जवाब दिता, ये भी तो हो सकता है कि पिछे बैठी हुई इहदी भैण भी हो सकती है, इहदा ये भी तो रिश्ता हो सकता है। तो तुसीं अलग ही रिश्ता क्यों पहला ही तय कर लिया? कुछ भी हो सकता है। तो तमाम आलमां दा कहना है कि जे तुसीं भगत हो तुहानूं भगत ही दिसणगे, गुस्ताखी माफ। जे तुसीं भगत नहीं हो, असाधु हो, आप जी नूं सारे असाधु दिसणगे। भगतां नूं सारे भगत दिसते हैं। लेकिन एक तीजा मनुख हो रहा है, तीजा मनुख वो केड़ा? मैं फिर गल दोहरा देवां, गल पकड़ विच आ जाए। एक मनमुख है, एक गुरमुख है। एक दा मुखड़ा अपने मन वल है, मन मुख, मुखड़ा मन वल है। दूजे दा मुखड़ा गुरु वल है, गुरमुख। ते गुरमुख ने जो कुछ देखना है वो अपने ढंग नाल देखना। मनमुख दा कुदरत नूं देखण दा अपना ढंग है, अपना ढंग है। लेकिन एक तीजा मनुख होर है जो इन्हां दोवां तो ही उच्ची अवस्था विच बैठा होया। दो ते ओ की कहंदा है? वो कहंदा है गुरमुख ते मनमुख एक ही सिक्के दे दो पहलू हन। कुदरत दे विच एक खेड है, जितनी मात्रा दे विच हनेरा है उतनी मात्रा विच प्रकाश है, जितनी मात्रा दे विच जन्म है उतनी मात्रा विच मरण भी है, जितनी मात्रा दे विच गुरमुख हन उतनी मात्रा विच मनमुख भी हन। तो जे किधरे असी सारे दे सारे मनमुख कढ़ लईए तो वो सिक्का चल ही नहीं सकता, क्योंकि सिक्के दे दो पहलू होने लाजमी ने। फिर वो जो तीजा मनुख है वो की कहंदा है? कहंदा है ना कोई गुरमुख ना कोई मनमुख, ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरते सब किछ तेरा बाणा। ये संत है प्रभु बहाने ऊझड़ बहाने रहा, बहाने हर गुण गुरमुख गावा। बाणे भरम भवे बहु जोने, सब किछ तिसे रजाई जियो। इसनों कहंदे ने परम अवस्था, परम अवस्था। हुण मैं कबीर साहिब की गल करां जो कि एक सिरमौर सितारे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती या हिंदुस्तान आकाश किसी ने मैनू एक गल होर कही, कहने लगे यानी साडा मुल्क कितना गांव वाला
न भागां वाला है। भगत भारत विच हन, संत हन विच, उतने बचत नहीं है। कहने लगे ज्ञानी जी थोड़ा की विचार है, तुसी दसो। मैं क्या गुस्ताखी माफ, जितना भारत कर्म कांडां विच फसिया होया है उतने कर्म कांड होर किते भी नहीं हैं। तो जिथे डॉक्टरां दी गिणती वाधू होवे तां यही समझना कि इत्थे रोगी बहुते ने। जिथे हॉस्पिटल्स बहुते होण समझ लेना इत्थे रोगी बहुते हैं। कर्म कांड थां थां ते कर्म कांड, थां थां ते कर्म कांड। जेकर मैं अर्ज करा, जितने भगती काल विच जितने भगत होए ने इन्हां ने कर्म कांडां चों कढ़िया सानू, लेकिन फिर कर्म कांड हावी होंदे जा रहे हैं, फिर हावी होंदे जा रहे। जिथे असी बचना सी, क्योंकि एक प्रेमी ने मैनू कहा, कहने लगे ज्ञानी जी, सनातनी मित्र सी, कहने लगे ज्ञानी जी मैनू जितना सुकून गुरुद्वारे विच मिलता है उतना किते नहीं मिलता। तो मैं पुछ बैठा मैनू कारण दसो, कारण की है? कहने लगे बस एको कारण है, इत्थे ना तो कोई तिथी वार की गल करते हैं, ना किसी कर्म कांड की गल करते हैं, ना किधरे तारे सितारे नक्षत्र ग्रह की गल करते हैं, केवल तो केवल गुरु की गल करते हैं। नहीं तो साडे विच की है, अज मंगलवार है अज ये प्रसाद लियाना, अज शनिवार है अज ये प्रसाद लियाना, अज वीरवार है ये प्रसाद लियाना। ये दिहाड़े चंगे नहीं चल रहे हैं, इन्हां विच विआह शादी नहीं करनी, कर्म कांड ही कर्म कांड। अज दा जो मुख महावाक आप जी ने श्रवण किया, सिंह साहिब जी की रसना पास कबीर साहिब दे बोल ने, सनक सनद महेश समाना। सनक सनद सनातन सनंत कुमार, ये चार ब्रह्मा के पुत्र होए ने। मैं थोड़ी जी जानकारी आप जी को इन्हां दी दे दूँ, क्योंकि जिथों तक मैनू मौका मिलिया तो ये जो ब्रह्मा के चार पुत्र सन ये बहुत भगती करते सी। इन्हां दा बहुता वक्त भगती दे विच ही गुजरदा सी, भगती दे विच। और कहंदे ने कि इन्हां दी ही संतान जिन्हां नूं असीं कहंदे हाँ भट्ट, इन्हां दी संतान है। गाहां इन्हां दे बच्चे, अगे उन्हां दे बच्चे, ते ये भगती करदियां करदियां इन्हां ने निरंकारी रहमत हासिल कर लई। पर कबीर साहब महाराज की कहंदे ने परमात्मा दा अंत नहीं पा सके, कि तेरा आद की है तेरा अंत की है। हकीकत है। जेकर मैं इस तरह अर्ज करा कि साडे मुल्क दे विच जो तीन शक्तियां की पूजा की जाती है, ब्रह्मा की, शिव जी की, विष्णु जी की, तो तिन्हां दी जिहड़ी प्रकृति सी, सुभाव सी, कहंदे ने शिव जी वर्गा त्यागी कोई नहीं सी, ब्रह्मा वर्गा खोजी कोई नहीं सी, और विष्णु जी महाराज वर्गा ऐश्वर्य जीवन, शाही जीवन किसी ने नहीं भोगिया। तो मैं अर्ज की थी, जिन्होंने ये गल आखी तो मैं उसनों एक गल कही कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा त्यागी कोई नहीं सी रूहे जमी ते, और धन गुरु गोबिंद सिंह वर्गा दार्शनिक भी कोई नहीं सी, और धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा ऐश्वर्य जीवन भी किसी का नहीं सी। क्योंकि जे त्याग की गल करिए तो जी महाराज ने की त्यागया है, घर बार त्यागया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सारा सरबंस ही वार देता है, सारा सरबंस।
खैर मुक्तसर मैं अर्ज करा, कहते ने इतनी खोज की ब्रह्मा ने, पर खोज करन दा इको ही कारण सी उहदा, मैं अंत लभना है। अंत तो हर एक थां ते उसने अपनी पैनी दृष्टि पाई, हर थां ते कि मैं अंत लभना है। तो फिर कहते ने जदों उसने बनस्पति ते दृष्टि पाई, इतनी गहरी दृष्टि कि बेशक उत्थे जन्म होया आयुर्वेद का। ये ब्रह्मा की खोज है। जदों उसकी दृष्टि खत्म हुई, भाव गहराई तक जाके जदों गल समझ नहीं आई, तो उसकी रसना चों बोल निकले, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, परमात्मा का अंत ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर जदों स्पेस ते दृष्टि गई ब्रह्मा दी, तारे सितारे नक्षत्र ग्रह सारियां दी चाल नूं समझिया, ते उत्थे जन्म होया ज्योतिष विद्या दा। पर ब्रह्मा दी रसना चों बोल निकले, नेति नेति, अंत इत्थे भी नहीं है, अंत इत्थे भी नहीं। फिर ब्रह्मा ने दृष्टि पाई मन ते, पर मन ते जदों दृष्टि पाई तो फिर मन भी पकड़ विच नहीं आया। बेशक मनोविज्ञान का जन्म जरूर होया, पर उत्थे भी ब्रह्मा नूं कहना पिया, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कहते ने अखीर विच ब्रह्मा की दृष्टि गई अपने तन ते, और उदों तक ब्रह्मा जी बुढ़े हो गए सी। अज जदों भी तस्वीर वेखोगे ब्रह्मा की, तो आप जी नूं दाढ़ी उहदी चिट्टी नज़र आएगी। जदों उन्हां दी दृष्टि अपने ते गई, तो फिर अपने आप नूं की कहंदा है, कहंदा है तूं रब दा अंत पाउण लगा सी, तेरा तां खुद दा ही अंत आउण लगा है, तू तां खुद ही बुढ़ा हो गया। फिर उन्हां दी रसना चों बोल निकले सी, बेअंत बेअंत बेअंत। ਉਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ नहीं, वो पकड़ विच ही नहीं आंदा, जिसनों परमात्मा कहते हैं। और एक मैं होर गल करा कि आत्मा और परमात्मा दा जां मनुख दा परमात्मा नाल मिलन नहीं होंदा। मेरी अर्ज नूं समझना, शब्दां नूं गहराई नाल समझना, मनुख दा परमात्मा नाल मिलन कदे भी नहीं होंदा। आप जी ने कहना है ज्ञानी जी फिर ये भगती बेकार दी है, जे मिलन ही नहीं होना तो फिर भगती बेकार दी है। हाँ, मिलन नहीं होंदा मनुख दा और परमात्मा दा मिलन नहीं होंदा। उसका कारण है कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। क्योंकि जदों तक मनुख दी मैं मौजूद है, उदों तक तू नाल मिलन नहीं होएगा। तो जदों मनुख दी मैं मिटदी है, फिर तू नाल मिलन होंदा है। तो फिर मैं तो रहा ही नहीं, मिलन किहदे नाल होया? फिर मैं भी तू हो गया, एक हो गए। जदों तक दो हन, मिलन नहीं होएगा। जदों मैं मिटदा है, गल बन जाती। मैनू आप जी दी रहमत दे सदके, गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा दे सदके, बच्चा कनेडा की धरती ते उन्होंने मैंने एक गल कही कल कि अज मैं प्रोग्राम करन गया तो उत्थे वड्डे वड्डे सिंगर भी आए सी। ते वो बच्चा आप जी दे सदके तबले दे विच, तबले दी कला विच माहिर है। क्योंकि गंधर्व यूनीवर्सिटी तो उसनों फस्ट क्लास की डिग्री मिली। उसने मैंने एक गल आखी तो वह गल मेरे जहन विच बैठ गई, तां करके मैं आप जी के सामने वो गल रखन लगा। कहते ने मेरे नाल सितार वादक बैठा सी, कलाकार सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਬਲੇ ਦਾ ਸੁਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਜੋ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਤਬਲਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਤਬਲਾ ਫਟੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੇਗੀ ਸਿਤਾਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧਕ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੁਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਆ मुझ में रह न हूँ जब आपा पर का मिट गया जित देखूं तित तू। तो जिन्होंने कोशिश की कि मैं रब दा अंत पा लवां, तो कबीर जी कहते ने नहीं पा सके। हाँ वो खुद परमात्मा हो गए पर अंत नहीं पा सके, क्योंकि अंत कौन पाएगा? अंत पाउन वाला ही मिट गया। जिवें जिवें गहराई विच जांदा गया तिवें तिवें मिटदा गया। तो कबीर साहब कहते ने सनक सनद महेश शिव जी एडे इन्ने वड्डे वड्डे भगत होए, शेख नाग तेरो मरम ना जाना। एक फन नहीं, दो फन नहीं, 1000 फन शेख नाग दे। और कहते हैं कि हर एक फन दे नाल परमात्मा का नवा नाम जपदा है, पर एक बार जो नाम जपिया दोबारा वो नाम नहीं लवेगा, फिर दूजा, फिर तीजा, फिर चौथा। कहते हैं कितने नाम हैं परमात्मा दे, अंत ही नहीं, अंत ही। कबीर जी कहन लगे मैं एको ही जुगती सिखी है, वो है संत संगत राम हृदय बसाई। जे तेनू उदा प्यार चाहिदा है तो तू सत संगत विच बैठ, संत संगत संगत कर तू इलाही। इत्थे की प्राप्त होवेगा? हुण किन्हां दी संगत विच बैठे हो? गुरु दी संगत विच बैठे हो। हुण एक गल मैनूं कहण देना, गुस्ताखी माफ, क्योंकि गल जिहड़ी है दुनियावी गल है, और इतनी गल तो पशु भी समझते हैं, क्योंकि पशु के जगत विच भी है। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद विच जदों नमाज अदा करनी होवे तो केवल ते केवल पुरुष होण, इस्त्री कोई ना होवे। मैं पुछ बैठा ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? क्योंकि गुरु नानक साहिब के घर में तो सारे इकट्ठे बैठे होंगे ने। तो उसने जिहड़ी गल आखी ਉਹਦੀ सोच के मुताबिक वो अपनी थां ते ठीक है। मेरी अपनी सोच मैनू एक नवा अनुभव मिलिया, और अक्सर ये गल मेरा मित्र भी मैनू कहता है। कहते ने जदों मेल ते फीमेल बैठे होण
तो मैं फिर अर्ज करा गुस्ताखी माफ़। कहते ने चेतना दे विच हरकत शुरू होंदी है, चेतना दे विच हरकत शुरू होंदी है, और ये हरकत होनी लाजमी है क्योंकि चेतना का सुभाव है माया का सुभाव है। जे किधरे हरकत शुरू ना होवे तो कहते हैं कि फिर मनुख का शरीर पूर्ण नहीं है, किते न किते कोई कमी है। इतनी गल तो आप जी मेरी समझ रहे होगे। हुण एक गल मैं दूजे पासे करना, गुरु दे कोल असी बैठे होइए, गुरु नूं असीं पति कहंदे हां, परमात्मा नूं असीं पति कहंदे हां, और असीं उहदियां इस्त्रियां हन। रोज़ आके बैठते हैं पर कोई हरकत नहीं है जीवन विच, रोज़ आके बैठते हैं पति नाल लेकिन कोई हरकत नहीं है। हरकत तो मुराद साडे जीवन विच कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, हरकत ही नहीं, या फिर अंदर संत का जन्म नहीं हो रहा है। रिश्ता तो साडा हो गया लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर जहाँ साडे कोल गर्भ नहीं है, सीधी जी गल है। जे गर्भ नहीं है, बच्चा पैदा नहीं होएगा। गुरु दे कोल बैठे हुए हाँ, कितने ही साल हो गए ने, गल्लां सुनदियां, कथा सुनदियां, कीर्तन सुनदियां, पर साडे अंदर संतत्व पैदा क्यों नहीं होया? किते न किते खराबी है। जे मैं थोड़ी देर वास्ते ये कह देवां गुस्ताखी माफ़ कि गुरु विच खराबी है, आप जी ने कहना ज्ञानी जी नहीं, गुरु विच खराबी नहीं है। फिर किहदे विच खराबी है? फिर खराबी साडे विच है। कबीर साहब नूं कहना पिया, कबीर साचा सतगुरु क्या करे, ज्यों सिखा मैं चूक, अंधे एक न लागही, ज्यों बांस बजाइए फूंक। बांस पोला है, एक पासे फूंक मारोगे दूजे पासे हवा ने निकल जाना है, निकल जाना, गल खत्म हो गई। लेकिन जिहड़े सूझवान होंदे ने वो की करते ने? गुरदास जी ने एक गल लिखी है, कवित सवई है। वो कहते ने कि जदों मात गर्भ दे विच बच्चा प्रवेश करता है, एक अणु, केवल एक अणु, माँ उसे दिन तो खाना पीना संजम विच रखती है, उठना बैठना संजम दे विच रखती है, विचार संजम विच रखती है। क्यों? क्योंकि उसनों खबर है कि मेरा भोजन ही बच्चे का भोजन है, मेरा भजन ही बच्चे का भजन है, मेरे विचार ही बच्चे के विचार ने, मेरे ख्यालात ही बच्चे के ख्यालात ने, मेरी सिक्खी ही बच्चे की सिक्खी है। हुण जे घर विच आप जी ने फोटो लगाई होवे कि सिर ते टोप होवे और हथ विच सिगार फड़िया होवे, फोटो ओदी लगाई होवे, तो गुस्ताखी माफ़, उम्मीद न रखना कि आप जी का बच्चा सिख होवेगा, उम्मीद न रखना। क्योंकि आप जी की देखनी बच्चे की देखनी है, आप जी की सोचनी बच्चे की सोचनी है, आप जी के ख्यालात बच्चे के ख्यालात ने। फिर माँ संजम विच रहिंदी है। तो जदों असीं गुरु दे बोल सुनते हाँ, ये समझ लवो कि नाम का एक कणी साडे अंदर गई है। हुण इहदी संभाल करनी फिर आप जी का काम है। फिर संजम नाल बोलना, संजम नाल गल करनी, संजम नाल उठना, संजम नाल बैठना। पर होंदा की है, इत्थे संत सिंह मशकीन एक गल कहंदे सी कि सत दी संगत करदियां करदियां कई वारी झूठ दी संगत कर बैठते हैं। मैं फिर गल दोहरा देवां, संगत सत दी चल रही सी, बैठे सी सत संगत विच, संगत तां करनी सी सत दी, पर सत दी संगत करन दी थां झूठ दी संगत कर बैठे। कथा सुन के बाहर निकले ही नहीं, एक दूजे ते क्रोध, संगत करके बाहर निकले ही नहीं, एक दूजे की निंदा, झूठ की संगत कर बैठे। कबीर साहब कहते ने, मैं सत की संगत की है और सत की संगत करदियां करदियां मनुख संत बन जाता है।
संत बन गया। हनुमान सर गरुड़ समाना, हनुमान वर्गे, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੜ ਪੰਛੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। परमात्मा की शुरुआत कित्थों है समझ नहीं आई, परमात्मा का अंत कित्थे है समझ नहीं आई। परमात्मा की तां गल छड्डो, कहंदे ने आकाश की है, ये भी बहुत दूर की गल है, बहुत दूर की गल है। आप जी पानी नूं लै लवो, एक बूंद नूं, एक बूंद नूं, एक बूंद नूं भी समझना अजे तक भी कठिन है, क्योंकि एक मनुख जो कि साइंस की पढ़ाई करता पिया सी, कहने लगे ज्ञानी जी दसो की कहना चाहते हो तुसी, पानी की है? कुछ भी तो नहीं है, H2O। मैं क्या बिल्कुल है। जे H2O जे इन्हां दा तुसी सुमेल करांदे हो तां पानी बनदा है, लेकिन इन्हां दे विचकार एक विद्युत होर है जो विद्युत दिसदी नहीं। जे वो ना होवे तो H2O भी पानी नहीं बनेगा। अंदर कोई विद्युत है जो इन्हां नूं समेट के रखदी है, जो इन्हां नूं पानी बनांदी, क्रांति घटित होंदी है। दूजी गल कि तुसी जे पानी नूं समझ लिया ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा है, तो तुसी मैनूं दसो ये ऑक्सीजन की है? इनू पकड़ के दिखाओ, ये कित्थों आ रही है? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दे बोल हन, साचे ते पवना बया। हुण सच तो, निरंकार तो, परमात्मा तो एक लहर चली है, हवा, और उस हवा नूं ही गुरु नानक साहब ने कह दिता पवन गुरु। क्योंकि जो पहली हरकत हुई है सच तो, वो सच तो पहला की बनिया? हवा। मैं बोल रहा हाँ, शब्दां नूं हवा चाहिदी है। आप जी सुन रहे हो, ये हवा दे राही शब्द जा रहे हैं, तो मूल रूप दे विच गुरु शब्द ही है, पर शब्द नूं पहुँचाउण वाली वायु है, हवा है। हवा नूं भी नहीं समझ पाए। मुक्तसर में अर्ज करा कि जितने भी पीर फकीर औलिए हुए, तो साधना करदियां करदियां उहदे विच लीन तो हो गए, पर अंत नहीं पा सके। एक होर कमाल की गल देखना गुरु ग्रंथ साहब दे विच। पहली गल तां कहंदे ने कि तेरा कोई अंत पा ही नहीं सकता, तैनूं कोई कह ही नहीं सकता। फिर कहंदे ने कि जेकर किसी नूं कहण दी ताकत होई है, जेकर किसी नूं ताण मिलिया है, शक्ति मिली है कि तू की है, तू कितना वड्डा है, तो कहंदे ने हाले ताकत ही मिली है, तो कहने वाले तेरे रहे समाई, वो तो तेरे विच ही डुब गए, हुण कौन बोलेगा। चार वेद और सिमरत पुराना, चार वेद 18 पुराण सिमरतियाँ। कहन लगे कमला पत कवला नहीं जाना। कवला कहते ने लक्ष्मी नूं, कमला पत कहते ने लक्ष्मीपति विष्णु जी। आप जी विष्णु भगवान भी कहते हो। मैं एक छोटा जिहा ख्याल उन्होंने आप जी के सामने रखा भगवत पुराण का। केवल कहने का मेरा मकसद इतना है, आप जी नूं गल पकड़ विच आ जाए। भगवत पुराण नूं पढ़दियां पढ़दियां, वाचदियां वाचदियां, पठन करदियां करदियां एक गल अनुभव हुई। किहड़ी गल? विष्णु भगवान आप कहंदे ने कि मैनू समय समय ते
परमात्मा की झलक मिलती रही है, पर पूर्ण तौर पर मैनू भी खबर नहीं परमात्मा की है, मैनू भी खबर नहीं। केवल ते केवल झलक मिलती रही है, बाकी पूर्ण तौर पर समझा ही नहीं जा सकता। इसे करके इस्लाम धर्म विच उसनू अल्लाह कहते हैं। अल्लाह भाव जिहड़ा लभदा ही नहीं। अल्लाह कहे कबीर सो भर में नाही, अखीर विच गल कह के मैं समाप्ति वाला ना। मनुख बंदना करदा है। मैं कल परसों भी अर्ज कर रहा सी, गुरु नूं पुछ लिया संगतां ने, महाराज कोई वंदना करदा है देवते दी, कोई वंदना करदा है किसी देवते दी, कोई वंदना करदा है किसी पीर दी, कोई वंदना करदा है किसी जानवर दी, कोई वंदना करदा है किसी रुख बिरख दी, असी वंदना किसनों करिए? तो साहिब ने की जवाब दिता सी, वंदना हर वंदना, नमस्कार करनी है तो हरि नूं करनी है। और जे हरि नूं छड्ड के किधरे मड़ी मसाणा नूं सजदा करते रहे, रुख बिरख नूं सजदा करते रहे, तो कहते ने केवल ते केवल भटकना ही रहेगी, बाकी गल नहीं बनेगी। और कबीर साहब ऐलानिया कहते ने, कहे कबीर सो भर मैं नाही, पग लग राम रहे शर नाही। जदों मनुख राम की शरण विच आ गया, उसकी भटकना खत्म हो गया, क्योंकि फिर जो कहना सो प्रभु जी पास, एक नाल जुड़ गए। नानक नदरी नदर निहाल, भुल्लां चुकां दी खिमा,